सो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी अगर इंटीग्रल मीट्रिक अगर हम लेते हैं किसके ऊपर, क्लास ऑफ continuous function defined on closed interval 0 1, then the Cauchy need not be convergent. Now we have one more example of sequence of functions. Suppose we define a sequence of functions fnx equal to nx upon n plus x on closed interval 0 1. Suppose, okay, and now we define a norm on this on the space of continuous function, same space on continuous function, mod of supremum of mod of fx minus gx, and your space is C01, set of all continuous functions defined on 0 1 to R or C. Okay, now question is whether this sequence is Cauchy. If it is Cauchy, then can we say this sequence is convergent in this space with this metric? This is a sequence in this space C01. Okay, with this metric, can we say this sequence is Cauchy? If it is Cauchy, then can we say it is convergent? So let us see. Now first we claim that sequence Fn is Cauchy in C01. We prove this, that this sequence is Cauchy. Now how can we prove this? We have to show dFn Fm tends to 0. We know this. To show dFn Fm tends to 0 as Nm tends to infinity. It means same. This is the definition of Cauchy. Okay, now see here. First we consider dFn Fm. Now what is this? And now we also assume let m be greater than n. Okay, m be greater than n, क्योंकि mn दो नंबर से तो नेचुरल है, either m is greater than n or n is greater than. So we may assume without loss of generality, means it hardly matters or it will never matter whether you take m greater than n or n greater than. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप m greater than n लेते हो या n greater than, क्योंकि दोनों m and n क्या है, डमी सिंबल्स है. ठीक है, ओके. सो dFnm क्या होगा, nx I can write this. If you simplify this, you will get m minus n x square upon remember this is supremum over x belonging to 0 1, because metric यही है आपका, supremum over x belonging to 0 1 upon m plus x n plus x. अच्छा, जो हमारी assumption थी that m is greater than n, so यहाँ पर because m is greater than n, can I write this? I can remove mod. Because m minus n, because of this assumption, m is greater than n, so I can remove mod. ठीक है. अच्छा, if you see this is nothing but a function of x. ठीक है, x है, किस पर डिफाइंड है, on 0 1. कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन अ क्लोज इंटरवल, वी नो वन रिजल्ट, अटेंड्स इट्स सुप्रीमम एज वेल एज इन्फीमम. ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्लोज इंटरवल पे है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर इसका सुप्रीमम आएगा, से एक्स नॉट. ठीक है, सपोज इसका किस पॉइंट पर सुप्रीमम आता है, एक्स नॉट पे. सो इट मींस दिस इज इक्वल टू m माइनस n एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन m plus n m plus x naught n plus x naught for some x naught belonging to closed interval 0 1. Why? Because m minus n x square upon m plus x n plus x is a continuous function. If it is a continuous function, then definitely it will attain its supremum at some point in closed interval 0 1.
So this x naught belongs to where? No doubt somewhere in 0 1, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो सुप्रीमम भी अटेंड करेगा, ठीक है। अच्छा अब मेरे पास ये आ गया। अच्छा एक बात बताइए, कैन आई राइट दिस? देखो m माइनस n जो है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, ये क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर m प्लस एक्स नॉट, नो डाउट ये क्या है? हमेशा एक नॉन नेगेटिव टर्म्स है, तो अगर डिनोमिनेटर को आप डिक्रीज करेंगे तो ओवरऑल नंबर क्या होगा? हमेशा इंक्रीज करेगा। एम आई राइट? क्योंकि m माइनस n इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, सो एक्स नॉट का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ये नंबर नॉन नेगेटिव है, इसको मैं हटाऊंगा तो ओवरऑल नंबर क्या होगा? हमेशा इंक्रीज करेगा, ठीक है। अच्छा दिस कैन बी रीरिटन एज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस n अगेन। व्हाई? बिकॉज एक्स नॉट कहां लाई कर रहा है? 0 1 के बीच में, तो ऑब्वियसली एक्स नॉट की वैल्यू क्या होगी? 0 1। अगर x 0 1 के बीच में तो एक्स स्क्वायर भी क्या होगा? 0 1 के बीच में होगा हमेशा। अच्छा एक नॉन नेगेटिव टर्म को अगर मैं हटाऊंगा डिनोमिनेटर में तो नेचुरली ओवरऑल नंबर क्या होगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी दिस टेंड्स टू 0, सो dfn fm टेंड्स टू 0, यही तो हमें शो कर रहा था। इज इट क्लियर? हमें यही शो करना था कि dfnm 0 की तरफ जा रहा है एज nm टेंड्स टू इंफिनिटी, सो दैट इज व्हाई dfn fm यहां से चले, यहां से चले, यहां से चले, और 1 by n tending to 0 as n tends to infinity. So distance is tending to 0. So that is why I can say that this sequence fn, therefore fn n greater than equal to 1 is a Cauchy sequence in C01. Am I right? हो गया ये? Cauchy प्रूव कर दिया है। अच्छा now any guess it is convergent or not in C01? अच्छा पहले तो ये बताइए, अगर ये मेरी सीक्वेंस है, एनीबडी कैन टेल द लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस? अगर fnx है, अगर कोई सीक्वेंस है तो नेचुरल है उसकी लिमिट भी होगी। क्या लिमिट होगी इसकी? हाँ जी, what? Yes, somebody said something. Sorry? x, हाँ जी, कोई बताना चाहेगा इसकी लिमिट कैसे निकलेगी? हाँ जी, प्रवीण चौक, बड़ा इजी है, nobody knows how to find limit of this sequence, very easy, बहुत प्रॉब्लम्स की होगी आपने इसे। 0 पे you are saying converging to 0, 0 पे, वन, हाँ क्या बोले? x, that is the correct answer. See how n x n plus x है ना, just n कॉमन ले लो, this is equal to n into x n 1 plus x by n, कैंसिल आउट हो गए, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये क्या हो जाएगा? 0, this is equal to x as limit tends to infinity, so this is the limit. Very good answer. So this is the answer. So n कॉमन लीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और x 1 plus x by n आएगा, ठीक है। So n tending to infinity है, 0 की तरफ बचा क्या? सिर्फ हमारे पास x, and now we claim that sequence fnx converges to f x, fn ले लो, converges to f where fx is equal to x for all x belonging to 0, and we will prove it where fx is equal to x for all x belonging to 0 1, and we will prove it. This is our claim. Okay, so now see here. अच्छा अगर मुझे ये प्रूव करना है, सपोज मुझे ये प्रूव करना है कि fn कन्वर्ज करती है f को, इट मींस वी हैव टू शो व्हाट?
that is to show now, yes, to show, yes, to show sequence fn converges to f, that means to show distance between f and f tends to 0 as n tends to infinity. Am I right? यही डेफिनेशन है कि भाई डिस्टेंस जो है टर्म्स का लिमिट से क्या जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, तो देन ओनली यू कैन से ना कि एफ एन एफ की तरफ जा रही है. ठीक है ना, ये हम प्रूव कर भी चुके हैं मैथमेटिकली भी. ठीक है, ओके, नाउ सी है. सो अगर मुझे ये जीरो की तरफ दिखाना है तो वी विल कंसीडर व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड. सो कंसीडर दिस लेफ्ट हैंड साइड, डी एफ एन एफ, दिस इज इक्वल टू व्हाट, सुप्रीमम x belonging to 0 1 mod of nx upon n plus x minus x. Am I right? ये किसके इक्वल है, सुप्रीमम x belonging to 0 1 mod of nx minus nx minus x square upon n plus x. सुप्रीमम this can be rewritten as am I right, x square being positive, माइनस तो चला ही जाएगा. अच्छा एक बात बताइए, इसका सुप्रीमम अगेन द यूजिंग द सेम आर्ग्यूमेंट, कंटिन्यूअस ऑन अ क्लोज इंटरवल, तो दैट इज व्हाई दिस फंक्शन विल ऑलवेज अटेन इट्स सुप्रीमम एट सम पॉइंट. ठीक है ना, पॉइंट कहां होगा, इंटरवल 0 1 में. ठीक है ना, सो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू say x naught square upon n plus x naught for all n, you can say x naught for some x naught belonging to closed interval 0 1, again using the same reason because x square upon n plus x is a continuous function on a closed interval. Chaliye, how can I say that this tends to 0? Question is this, again using the same trick as we used here. This is less than equal to, can I write this is less than equal to 1 by n, because x naught is again in 0 1, so x naught square is also 0 1, so numerator is always less than equal to 1. डिनोमिनेटर में देखिएगा तो x naught हम रिमूव कर रहे हैं तो ओवरऑल वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. सो दैट इज, एंड नो डाउट दिस टेंड्स टू 0 as n tends to infinity, and you can see here this is what we have to show, dfnf tends to 0. So from here you can see, so you can't say these problems are theoretical problem, actually these are like numerical problems, because they are, here we are not using any epsilon, del and not, कुछ नहीं यूज किया है, तो ये numerical problem की तरह. ठीक है, सो हमने यहाँ पर क्या प्रूफ करा है, हमने ये प्रूफ किया है कि C01 के अंदर अगर हम सुप्रीमम नॉर्म ले लेते हैं और अगर हम ये सीक्वेंस लेते हैं तो ये सीक्वेंस अंडर द सुप्रीमम नॉर्म is not only Cauchy but also convergent. ठीक है, तो ये सीक्वेंस Cauchy भी होगी और ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी होगी. अच्छा, जनरली कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि प्रूव कीजिए एक एग्जांपल के द्वारा कि सुप्रीमम नॉर्म के अंडर अगर मीट्रिक हमारा सुप्रीमम है और स्पेस C01 है, तो एक एग्जांपल देके प्रूव कीजिए या एक एग्जांपल दीजिए जिसमें कि Cauchy कन्वर्जेंट भी हो. समझ में आया? एक एग्जांपल दीजिए स्पेस C01 के अंदर जिसमें मीट्रिक क्या हो, सुप्रीमम मीट्रिक. ठीक है, उसमें एक सीक्वेंस का एग्जांपल जो Cauchy भी हो और कन्वर्जेंट. सो हियर इज एन एग्जांपल. ठीक है, तो डोंट थिंक कि आपको ये एग्जांपल इस तरह से बना बनाया मिलेगा. हो सकता है आपको खुद लिखना पड़े, हो सकता है पेपर में ये ना दे रखा हो कि प्रूव दैट दिस सीक्वेंस इज Cauchy एंड कन्वर्जेंट. समटाइम्स वो पूछ भी लेता है गिव एन एग्जांपल, तो उस केस में आपको फिर ये एग्जांपल देना पड़ेगा. ठीक है, और इन जनरल अगर आज टाइम मिला तो हम ये भी प्रूव करेंगे कि सुप्रीमम जो मीट्रिक होता है उसके अंदर वो जो हमेशा एक कंप्लीट मीट्रिक होता है. कंप्लीट मीट्रिक पे मैं अभी आ रहा हूं. इसके बाद अच्छा, हमने लास्ट क्लास में जो सेम स्पेस C01 में जब हम इंटीग्रल मीट्रिक ले रहे थे तो हमने देखा कि एक सीक्वेंस है जो Cauchy है बट कन्वर्जेंट नहीं है. सेम स्पेस C01 में आज हमने देखा एक सीक्वेंस हमने ली जो कि Cauchy है, सुप्रीमम नॉर्म में Cauchy है और कन्वर्जेंट भी है. अच्छा, तो स्पेस की ना अपनी अपनी चीज होती है अलग अलग की, मतलब जैसे अगर उस स्पेस में कोई सीक्वेंस Cauchy है तो क्या वो कन्वर्जेंट भी होगी हमेशा? ये मैंने पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया था और मैं दोबारा डिस्कस कर रहा हूं. ठीक है, तो कोई भी स्पेस है जैसे फॉर एग्जांपल R सेट ऑफ रियल नंबर्स,
इसके अंदर हम एक चीज जानते हैं कि अगर कॉशी है तो कन्वर्जेंट भी है बाय सी, कॉशी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया। तो कॉशी है तो कन्वर्जेंट भी है। अच्छा, एक चीज और हम जानते हैं कि अगर कन्वर्जेंट है तो कॉशी भी है, जानते हैं। प्रूफ करें, कैसे करोगे प्रूफ? कॉशी इंप्लाइज कन्वर्जेंट इंप्लाइज कॉशी, हाउ कैन यू प्रूव इट? बहुत इजी प्रूफ है, नथिंग इज देयर, थोड़ा सा है, देखिएगा इसको कि थ्योरम लिख लो एक छोटी सी, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन XG इज कॉशी। अगर कन्वर्जेंट है तो हमेशा कॉशी भी होगा। कॉशी होती है तो कन्वर्जेंट में क्वेश्चन होता है, बट अगर कन्वर्जेंट है तो वो हमेशा कॉशी होगी, एंड वी विल प्रूव इन दिस प्रूफ। सो लेट Xn be a convergent sequence in space XG. That is, it means what? क्या है? Xn converges to X for some X in space X. भाई कन्वर्जेंट का मतलब यही है कि उसकी लिमिट जो है वो किस में होगी? स्पेस में होगी, ठीक है। नाउ टू शो व्हाट वी हैव टू शो, Xn is Cauchy in XG। अब हमें प्रूव करना है कि ये Cauchy है। दैट मीन्स टू शो फॉर each epsilon there exists n naught in n such that distance between xn and xm is less than epsilon for all nm greater than equal to n naught। we have to show this only। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, अगर xn कन्वर्स करती है x को, therefore for each epsilon greater than 0 I am writing here nothing but only the definition of convergence। अगर कन्वर्जेंस की डेफिनेशन आपको पता है देन नथिंग इज देयर, फिर तो आप सीधा सीधा इसकी डेफिनेशन लिख रहे हो और कुछ नहीं कर। तो डेफिनेशन इस तरीके से होनी चाहिए कि आपके बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए डेफिनेशन। जैसे हम कन्वर्जेंस बोले तो इमीडिएटली आपको डेफिनेशन माइंड में आनी चाहिए, ठीक है। सो फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सच दैट d of x and x is less than epsilon by, you can leave it for all n greater than equal to n naught, ठीक है। अच्छा, हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है किन्हीं भी x and xm के बीच में लेस देन एप्सिलॉन है हर टर्म, जो कि आफ्टर किस टर्म के बाद है? n नॉट टर्म, हर टर्म के लिए प्रूव करना है, ठीक है। चलिए, तो हम मान लेते हैं कोई भी nm ले लो, लेट nm बी एनी नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू n naught। अब हमें डिस्टेंस इसकी बात करनी है, ठीक है ना, तो कंसीडर कर ले लेफ्ट हैंड साइड। सो नाउ डिस्टेंस बिटवीन xn xm, दिस इज बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी, लेस देन इक्वल टू xn x प्लस x xm। कैन आई राइट दिस बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी? अच्छा, हम ये चीज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंफॉर्मेशन हमारे पास किसकी टर्म्स में? x की टर्म्स में। तो जब तक हम इनके बीच में x नहीं लाएंगे ना, हम इसको यूज ही नहीं कर पाएंगे। We want to use it, और अगर हमें यूज करना है तो डेफिनेटली हमें क्रिएट करना पड़ेगा कुछ ऐसा कि ये चीज आ जाए। तो गिव इट सम नंबर से 1, ठीक है। अच्छा, dxn x इज लेस देन है dxm। अच्छा, क्या मैं ये लिख सकता हूं, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन बाय अभी बता रहा हूं, बाय 1, एंड दिस इज शुड बी, क्योंकि मुझे प्रूफ क्या करना है, तो what should be this by so that we can have here epsilon। अब समझ में आया मैं बाय क्यों बोल रहा था? दिस इज द रीजन, ठीक है ना। जनरली कुछ स्टूडेंट्स इसको लर्न करते हैं, क्रैम करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे बाय 3 आएगा, बाय 2 आएगा। अरे भैया, याद नहीं करना है, दिस कम्स फ्रॉम हियर ओनली, गो बैक फ्रॉम हियर। सो अगर दो सम एप्सिलॉन को हो तो इसका मतलब क्या है? बाय 2, गो बैक। सो नो नीड टू क्रैम एनीथिंग, सिंपल कैलकुलेशन,
तो आधे एफर्ट तो लोग थ्योरम में यही याद रखना है, उस वाली थ्योरम में एप्सिलॉन बाय 2 लेना है, नहीं, उस वाली थ्योरम में एप्सिलॉन बाय 3 लेना है, ऐसा नहीं सोचना है। नो नीड टू थिंक अबाउट दैट, वो यहां से आपको पता लग जाएगा। यू हैव टू जस्ट थिंक आउटलाइंस कि किस तरीके से करने हैं। यू सी कितना इजी प्रूफ था। अब जो हमें प्रूफ करना था, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, अब देखो ये मैंने सीक्वेंस लिख दिया, फॉर ईच एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट एंड नॉट सच दैट दिस dx and x is less than epsilon by 2 4। एक बात बताइए, मुझे यहां पर क्या चाहिए, एक तो n नॉट की एप्सिलॉन एग्जिस्टेंस चाहिए, देयर एग्जिस्ट, n नॉट की एग्जिस्टेंस कहां से आई, वो यहां से आ गई, आगे एक n नॉट देयर एग्जिस्ट, तो एक पार्ट तो हो गया, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है, हमें ये इनइक्वालिटी प्रूफ करनी है सभी nm के लिए, तो हम क्या करते हैं, कोई भी आर्बिट्ररी nm ले लो, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब ये इनइक्वालिटी अगर मैं हर nm के लिए प्रूफ कर दूं, वी आर डन। तो अब हमने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड इनइक्वालिटी ली, लेफ्ट हैंड साइड इनइक्वालिटी ली, अब हमें राइट हैंड साइड में एप्सिलॉन चाहिए। अब हम देखेंगे एप्सिलॉन कहां है, एप्सिलॉन तो भैया यहां आ रहा है, लेकिन एप्सिलॉन तो यहां आ रहा है बट इसके साथ x भी आ रहा है, तो अब क्या करिएगा, x दोनों साइड ऐड कर दीजिएगा, एंड नाउ यू कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। अब आपने यहां पे क्या करा, बाय 1 दिस इज एप्सिलॉन बाय 2, एप्सिलॉन बाय 2 बाय 1 एंड दिस इज एप्सिलॉन। कितना इजी है, लगता थ्योरेटिकल है बट इसको न्यूमेरिकल जैसा ही है कुछ भी, क्योंकि प्रूव तो आप फाइनली इनइक्वालिटी कर रहे हो ना, बाकी तो सब डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन है, सो नथिंग इज देयर, ठीक है। सो अब हमने क्या देखा कि किसी भी स्पेस में अगर कोई भी सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो वो हमेशा कॉची होगी। अब क्वेश्चन मार्क कहां पे आता है, क्वेश्चन मार्क आता है कि क्या कोई भी सीक्वेंस स्पेस में कॉची है तो वो कन्वर्जेंट होगी, आंसर इज नो। व्हाई, क्योंकि हम लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं, एक तो हमने सीक्वेंस ली थी 1 + 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, प्लस 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 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस कहां कन्वर्ट करती है, ई को, ठीक है ना। अगर हम स्पेस ले लेते हैं क्यू, स्पेस ले लेते हैं क्यू, क्यों हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने एक सीक्वेंस ली है 1 + 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, प्लस 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 1/n फैक्टोरियल। दिस सीक्वेंस, डोंट से दिस इज अ सीरीज, दिस इज अ सीक्वेंस, एसओपीएस, ठीक है। ये सीक्वेंस कहां कन्वर्ट करती है, ई को, और स्पेस मेरा क्या है, क्यू, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ई इज इरेशनल। सो हम ये क्या कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस कॉची तो है बट लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। सो हियर वी हैव नाउ सम एग्जांपल्स जो कि कॉची है बट कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन कन्वर्जेंट है देन डेफिनेटली एवरी स्पेस में क्या होगा, कॉची होगा। तो नेचुरली अब कुछ हम स्पेस अलग से डिफाइन करेंगे, ठीक है ना, जिसको हम बोलेंगे कंप्लीट स्पेस। कंप्लीट स्पेस किसको बोलते हैं, अ स्पेस इज सेड टू बी कंप्लीट इफ एवरी कॉची सीक्वेंस इन द स्पेस इज कन्वर्जेंट, इफ एवरी कॉची इज कन्वर्जेंट, ठीक है। डेफिनेशन लिखते हैं, अ स्पेस, a metric space xg is said to be complete if every Cauchy sequence in X is convergent। सो अब आप ये नहीं कह सकते कि सर कॉची इंप्लाइज कन्वर्जेंट का, फिर क्या करिएगा, आप तो कॉची से कन्वर्जेंट पे आ रहे हैं, कन्वर्जेंट से कॉची। अभी मैंने एक रिजल्ट प्रूव किया है कि कन्वर्जेंट ऑलवेज इंप्लाइज कॉची। तो कोई भी स्पेस होगा कन्वर्जेंट कॉची तो ट्रिवियली होल्ड करेगा, ठीक है, बाय दिस थ्योरम, वो तो नेचुरल है। क्या नहीं करेगा, कॉची इंप्लाइज कन्वर्जेंस। तो हम उन स्पेस को कंप्लीट कहेंगे जिसमें कॉची इंप्लाइज कन्वर्जेंस होल्ड कर। सो लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ कंप्लीट स्पेसेस। चलिए कोई एक एग्जांपल दीजिए सबसे पहले कंप्लीट स्पेस का एग्जांपल, एनीवन। हाँ हाँ, क्या बोला, नहीं, मैं स्पेस की बात कर रहा हूं, स्पेस, स्पेस सेट ऑफ रियल नंबर्स। बहुत बढ़िया आंसर है, एग्जांपल्स। फर्स्ट, सेट ऑफ रियल नंबर्स, वेरी गुड एग्जांपल। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स स्पेस, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। सी
इसके अलावा हम आर पे आए, आर को एक्सटेंड भी तो कर सकते हैं ना, बहुत बढ़िया, आर एन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कोई एग्जांपल सेकंड? हाँ जी, इसके अलावा और कोई? इसके अलावा ये एक एग्जांपल बनेगा जो अभी हमने लास्ट किया था, स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन विद यूनिफॉर्म मीट्रिक, स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस विद यूनिफॉर्म मीट्रिक, एंड वी विल प्रूव इट कि ये होता है, ठीक है, ये कंप्लीट स्पेस है, वी विल प्रूव इट लेटर, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए जो स्पेस हमारे कंप्लीट है। इनकम्प्लीट स्पेस का एग्जांपल्स, इनकम्प्लीट स्पेसेस का सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो जो इनकम्प्लीट है, सेट ऑफ रैशनल्स आ गए हैं, ये एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है। इसके अलावा और कोई एग्जांपल? हाँ जी, हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में। एक और एग्जांपल, सेम स्पेस, सेट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, सेकंड, set of continuous function on 0 1 but with the metric integral metric d, where d is defined as dfg is equal to integral of mod of fx minus gx dx x lying between 0 to 1। हमने लास्ट क्लास में एक एफ एन एक्स सीक्वेंस डिफाइन करी थी, 0 जब x लाई करता है बिटवीन 0 एंड 1 बाय 2 माइनस 1 बाय n, ठीक है। और एक स्पेस उसके बाद हमने उसको स्प्लिट किया था 1 बाय 2 माइनस 1 बाय n टू 1 बाय 2, और 1 बाय 2 से 1 पे हमने क्या लिया था, वैल्यू 1, सबसे पहले 0, सबसे लास्ट में 1, और बीच में वो इंटीग्रल सॉल्व करके आया था, वो वैल्यू सॉल्व करके, ठीक है। 1 बाय 2 n प्लस n, 1 बाय 2 प्लस x प्लस 1 समथिंग इस तरीके से था, ठीक है। सो वो एक जो सीक्वेंस थी वो बताती है कि ये स्पेस कौन सा, कंटिन्यूअस फंक्शन विद इंटीग्रल मीट्रिक इज ऑलवेज इनकम्प्लीट, इज ऑलवेज इनकम्प्लीट। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स थे जिसमें हमने ये प्रूव करा और जो हमने देखे हैं अभी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब इसके बाद हमारे पास जो है सब सीक्वेंसेस पढ़ा है आपने, सब सीक्वेंसेस, अगर जैसे सेट होता है उसका सबसेट होता है, ऐसे ही जैसे सीक्वेंस होती है उसकी सब सीक्वेंस होती है। अच्छा, सब सीक्वेंस को डिफाइन कैसे करते हैं? सब सीक्वेंस, सब सीक्वेंसेस डेफिनेशन, लेट xg be a metric space and xn n greater than equal to 1 be a sequence in x. Okay, now let n1 nk या फिर n1 ले लो, let n1 is less than equal to n2 less than equal to nk, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, let nk k greater than equal to 1 be a sequence of positive integers such that n1 is less than n2 less than n3 less than and so on. Then x and k greater than equal to 1 is called a subsequence of the sequence xn, of the subsequence of this sequence xn. And one more thing, if sequence xn k converges to some number x in x, then x is called a subsequential limit of
द सीक्वेंस xn greater than equal to 1. So try to understand it. मान लीजिए xg मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक स्पेस है और उस मैट्रिक स्पेस में कोई भी एक सीक्वेंस हमें गिवन है xn से। मान लीजिए n के हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है पॉजिटिव इंटीजर्स की, इस तरीके से कि इसमें जो सीक्वेंस में ऑर्डर क्या है, n1 is less than n2, n2 is less than n3 and so then this sequence xn k, ठीक है। अब इसके सफिक्स देखिए, सफिक्स क्या है, ये वाले n के k greater than equal is called a subsequence of xn, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, चलिए इसको एक फॉर द टाइमिंग इसको रोक देते हैं। अब आगे इसको पहले सबसीक्वेंस का मीनिंग समझ लो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सीक्वेंस है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन फर्स्ट। मान लीजिए मेरे पास एक सीक्वेंस है, बड़ी बेसिक सीक्वेंस ले रहा हूं जी, वो हमारे लिए बड़ी वेल नोन है, ठीक। ये एक हमने वेल नोन 1/n सीक्वेंस ले लिया। अब हम बात करते हैं इसकी सब सीक्वेंस। अच्छा, इसकी सब सीक्वेंस पहली बात है कैसे हम देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या कहता हूं, इसकी जितनी भी इवन टर्म्स वाली है ना, उसकी हम एक सीक्वेंस ले लेते हैं। जैसे अब इसको हम बोलते हैं x2n से, तो इसकी टर्म्स क्या होंगी, देखिए जिस तरह से सब सेट में से आता है, उसी तरह सब सीक्वेंस सीक्वेंस में से आती है। अच्छा, एक सेट के कितने सबसेट होते हैं डिपेंड करता है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, कैसे हैं, ठीक है ना। उसी तरीके अब इसमें तो इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स हैं, तो इसके तो आप कितनी सब सीक्वेंसेस बना सकते हैं, इनफाइनाइटली। अब आप बोलिएगा कि सर ये तो एक ही है, मैं कहता हूं 2n है, 4n है, 6n है, 8n है, 10n है, कितने ही ले लो, सारी की एक सीक्वेंस मिल जाएगी आपको। और वो सारी आ किसमें से रही है, इसमें से आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से सीक्वेंस से एक सब सीक्वेंस हमें आराम से, और इनफैक्ट एक क्या इनफाइनाइटली मैनी सब सीक्वेंसेस हम ले सकते हैं। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। अब बोलिएगा सर इसमें तो चलो कोई बात नहीं, इतना ज्यादा यूज नजर नहीं आता कि हम इसको उठा रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं एक और अच्छा उसका इंपॉर्टेंस देखिएगा। अगर सीक्वेंस मेरे पास कुछ इस तरीके से है, इसका पैटर्न समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर मैं क्यों बोलूं इसकी लिमिट क्या है, तो आप बोलिएगा क्या, डजंट एग्जिस्ट, नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि कुछ इसमें कुछ मतलब एक काम करता हूं मैं, इसकी है ना एक सब सीक्वेंस ले लेता हूं। अब मैं बोलूं इसकी लिमिट क्या है, 2, ठीक है। अब अगर मैं इसकी एक और सब सीक्वेंस लेता हूं, x2n -1 ले लो, n को 1 पुट करिएगा तो 1, क्या चीज, नहीं सेकंड टर्म ले रहे हैं ना, जैसे सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, फोर्थ टर्म क्या है, नहीं कौन सी, थैंक यू, कन्वर्जेंस, नो डाउट, ठीक है, थैंक यू। Okay, now next, this is what 1, 1, 1, and so now this subsequence also convergent and converges to 1, ऊपर चला गया, नहीं दोनों में डिफरेंस है ना। देखिए पेरेंट सीक्वेंस कहीं नहीं कन्वर्ज कर रही, ठीक है ना, और बच्चे जो हैं वो कन्वर्जेंट है। बाप पढ़ा लिखा हो ना हो, बेटे तो पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना। सो बोथ ऑफ दीज आर गुड, क्योंकि दोनों के दोनों कन्वर्ज। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सब सीक्वेंस, ठीक है ना। सीक्वेंस गड़बड़ कर रही है, लेकिन सब सीक्वेंस का बिहेवियर कैसा है, बड़ा अच्छा है, क्योंकि वो एक कांस्टेंट बन रहा है और वो कहाँ जा रहे हैं, सारे ये सारे कन्वर्जेंट। सो दिस थिंग्स मोटिवेट्स अस टू डिफाइन सब सीक्वेंसेस, ठीक है। तो यहां से हम अलग अलग, अच्छा एक चीज तो बड़ी क्लियर होती है, अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है तो आप सब सीक्वेंस के बारे में क्या कह सकते हैं,
सबसीक्वेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो, देन व्हाट कैन यू से अबाउट सबसीक्वेंसेस? हाँ, ऑब्वियसली, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, ठीक है ना। अगर फादर अच्छा है तो उम्मीद की जाती है बच्चे भी अच्छे ही होंगे, ठीक है ना, इट इज लाइक दिस। लेकिन अगर फादर गड़बड़ है तो यू कांट से ना, मे भी बच्चे कुछ अच्छे आ जाए, निकल जाए, सो लाइक दिस, ठीक है। सो दिस थिंग इज ऑलवेज। अच्छा, तो एक चीज हम हमेशा बोल सकते हैं कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो सब सीक्वेंसेस हमेशा कन्वर्जेंट होंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक चीज बताओ, चलिए उसको बाद में बताएंगे, वो जो नेक्स्ट रिजल्ट हम करेंगे उससे पहले एक और चीज, जो हमने ये चीज छोड़ दी थी इसमें, ठीक है। ये क्या कहती है कि अगर xn के कन्वर्स करती है x को, इसका मतलब कि अगर कोई सबसीक्वेंस किसी की तरफ कन्वर्स करनी, जैसे हियर पेरेंट तो नहीं करनी ना, पेरेंट्स के बारे में तो हमें पता ही नहीं है, जो इसकी बेबी सीक्वेंस है, सब सीक्वेंस है, ये किसको कन्वर्स कर रही है? सब सीक्वेंस कन्वर्स कर रही है। अगर कन्वर्स कर रही है तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि 1 इज अ सबसीक्वेंट लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस, 1 2 इज अ सबसीक्वेंशियल लिमिट ऑफ दिस एक्शन, ठीक है। ये 1 और 2 इसकी क्या है? सबसीक्वेंशियल लिमिट है। चलिए मैं आपको अच्छा लिमिट पॉइंट्स, चलिए खैर ये एक एग्जांपल, खैर वो तो बाद का है। लिमिट पॉइंट का बहुत अच्छा एक एग्जांपल बनता है जो काफी इंटरव्यूज में पूछा जाता है। चलिए कोई बात नहीं, जब अलग से इस पे आएंगे तब बात करेंगे उसकी। चलिए अब देखते हैं। इसके बाद एक चीज मैंने बोला था, एक चीज हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, ये आपने किया भी होगा, अगर सारी सब सीक्वेंसेस एक यूनिक लिमिट पे कन्वर्स करती है, देन व्हाट कैन यू से अबाउट द सीक्वेंस? अगर सभी सब सीक्वेंसेस किसी भी सीक्वेंस की एक पर्टिकुलर फिक्स लिमिट को कन्वर्स करती है, देन व्हाट कैन यू से अबाउट द सीक्वेंस? कैसे? हाँ यही है, तो सारी सब सीक्वेंसेस सीक्वेंस पे कैसे आए? सपोज उसकी कई सारी सब सीक्वेंस है, ठीक है, वो सारी की सारी कन्वर्जेंट है, देन व्हाट, हाउ कैन यू से कि सीक्वेंस इटसेल्फ इज आल्सो कन्वर्जेंट? क्वेश्चन इज दिस। भाई एक बात बताइए, हर सेट अपना सबसेट है, हर सीक्वेंस अपनी सब सीक्वेंस है, तो जब सारी सब सीक्वेंस कन्वर्स कर रही है तो इसका मतलब क्या है? इन पर्टिकुलर वो भी कन्वर्स कर रही है। एम आई क्लियर? भाई हर सेट अपना सबसेट है या नहीं है? आई कैन ऑलवेज राइट ना, ए इज सबसेट ऑफ ए, हर सेट अपना सबसेट है, हर सीक्वेंस अपनी सब सीक्वेंस है, और मेरा रिजल्ट क्या कहता है कि हर एक अगर सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो नेचुरली सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट है। व्हाट अबाउट इट्स कन्वर्स? अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो सब सीक्वेंस कहां जाएंगी? सारी की सारी कन्वर्जेंट, ठीक है। ये चीजें हम सब फर्स्ट ईयर में कर चुके, ठीक है। मैट्रिक्स इसमें हम इसमें नहीं कर रहे हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। बट एक और रिजल्ट है, अगर मान लीजिए सीक्वेंस अगर कॉशी है, अगर सीक्वेंस कॉशी है और उसकी कोई एक सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, देन व्हाट कैन यू से अबाउट द सीक्वेंस? अगर सीक्वेंस कॉशी है और एक सब सीक्वेंस इस सीक्वेंस की वो कन्वर्जेंट है, then what can you say about the sequence? May or may not be. Parveen is saying this. Anybody else? हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर है मेरा? सीक्वेंस कॉशी है, मतलब टर्म्स आर कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर, नो डाउट। उसकी एक सब सीक्वेंस वो कन्वर्जेंट है, एक्शन के कहां जा रही है? से एल। देन व्हाट कैन यू से अबाउट द पेरेंट सीक्वेंस एक्शन? क्या? ही इज सेइंग कि कन्वर्जेंट होगी और एल पे। परवीन इज सेइंग कि कन्वर्जेंट मे और मे नॉट भी। हाँ जी, और बाकी स्टूडेंट हाँ जी उसी पॉइंट पे कन्वर्जेंट होगी। लास्ट लास्ट, हाँ या ना? फर्स्ट पे आ जाओ, फर्स्ट पे आ जाओ। लास्ट ईयर हमेशा उसका रीजन पूछता था, सर इसका एक्सप्लेनेशन, इसका डेरिवेशन, ना 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 उसके साथ नहीं, फिर बातें करोगे। आगे कौन है?
बैठो 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 बेटा, आप सारे डेरिवेशन आ रहे हैं और डेरिवेशन ही आ रहे हैं, ठीक है। और मैंने फर्स्ट क्लास में बोल दिया था कि उसको जरूर पकड़ के रखना, याद है, उसको डेरिवेशन चाहिए और मैं डेरिवेशन ही पूछूंगा। क्या चीज? पूरी रामायण खत्म हो गई और सीता किसका बाप था? हद हो गई यार ये तो। चलिए भाई, तो अब हमारा एक रिजल्ट था। हाँ, तो और कोई बताना चाहेगा भाई? आप दो तो हैं। यू एनी गेस? किसके साथ, इसके साथ या इसके साथ? किसके साथ जाना चाहोगे? एनीवन? इज ओके। और कोई? लास्ट थ्री? ठीक है, तुक्के गलत होते हैं यार, मान लो, दे आर राइट। ठीक है, चलिए अब वही नेक्स्ट रिजल्ट हम प्रूव करेंगे। ठीक है, थ्योरम लेट एक्शन बी अ कॉशी सीक्वेंस इन एक्स, एक्स जी कर लो, ठीक, एंड एक्शन के इज convergent in xg, then xn n greater than equal to 1, k greater than equal to 1, n greater than equal to 1 is convergent in xd. We will prove it. ठीक है, this is the result. Gentlemen, next is derivation. Proof. Now we have proof. So let xn be Cauchy sequence in xg. ठीक है, to show xn n greater than equal to 1 is convergent in xg, we claim that yes, अगर मुझे कन्वर्जेंट शो करना है तो नेचुरली उसकी लिमिट शो करनी है, तो व्हाट शुड बी द लिमिट? अगर एक्सन के इस कन्वर्जेंट है, अच्छा वो हमने माना नहीं है, तो इससे पहले लेट एक्सन के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कन्वर्जेस टू एक्स। नाउ वी क्लेम दैट, क्योंकि वी आर गिवन ना कि ये कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट भी है, और वो लिमिट किस में होगी? सेम स्पेस में होगी, क्योंकि वो सेम स्पेस में कन्वर्जेंट है। ठीक है, सो लेट एक्सन बी कन्वर्जेंट टू xn converges to x. Now we claim that the sequence xn also converges to the same space, same limit x, converges to the same limit x, where n is greater than equal to 1. Okay, now as ठीक है, हाँ जी। अब ये जो मैंने स्टेटमेंट यहां पे मैंने लिखा है, इज इट करेक्ट? Reason is because xn k is a subsequence of xn. एक बात मुझे बताइए, अगर
एक्स एन या एक्स एन एम लिख लो इसको, ठीक है। अब इधर देखिए, सब सीक्वेंस और सीक्वेंस को एक बार कंपेयर कीजिए, x1, x2, x3 एंड सो, ठीक है। सपोज मैं कोई भी सब सीक्वेंस लेता हूं, सपोज मैंने इवन वाली ली, x2, x4, s6 एंड सो। अब मैंने सब सीक्वेंस ली, एक बात मुझे बताइए, जो इसकी फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये इसकी सेकंड टर्म है, जो थर्ड टर्म है और फोर्थ, जो इसकी सेकंड टर्म है वो इसकी क्या है, एक्चुअली फोर्थ टर्म है। इसको क्या मैं लिखूंगा, xn1, इसको क्या लिखूंगा मैं, xn2, ठीक है। n1 इज नेचुरली ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि n1 यहां पे क्या है, एक्चुअली 2 है, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। समझने की बात। n2 क्या है, n2 इज हियर व्हाट, 4, which is greater than equal to 4. In short, I can always say nk is always greater than equal to k for all k belonging to. Can I say this for subsequence? जब हम सबसीक्वेंस डिफाइन करते हैं ना, आपको याद होगा मैंने लिखा था अभी यहाँ पे, n1 is less than n2, n2 is less than n3 and so on. याद है मैंने अभी लिखा था यहाँ पे, n1 is less than n2 less than n3 less than and so on, लिखा था ना। तो इसका मतलब क्या है, सब सीक्वेंस को आप ऐसे नहीं ले सकते हैं कि पहले आपने ये लिख दी, पहले आप x4 लिख रहे हैं फिर x2, नो 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 नो, वो नहीं करना है। सो ऑलवेज कैसे आप करेंगे, पहले जो पिक कर दिया आप वापस नहीं जाएंगे, उसके आगे जाएंगे। दैट इज व्हाई n1 इज लेस देन n2 लेस देन n3। ये n1 क्या है, टर्म नंबर, ठीक है ना। तो जो पहली टर्म होगी उसके बाद हमेशा जो टर्म आएगी ना, जैसे सपोज ये फिफ्थ टर्म है, तो फिफ्थ के बाद कभी भी फोर्थ नहीं आएगी, हमेशा क्या आएगी, फिफ्थ के ऑनवर्ड्स जो टर्म्स है। तो लाइक दिस, समझ में आया सब सीक्वेंस का। तो आई कैन ऑलवेज राइट एक्स एन एम इज लेस देन एम फॉर ऑल एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, व्हाई, बिकॉज एक्स एन के इज अ सीक्वेंस ऑफ एक्स एन, आई कैन ऑलवेज राइट। अब इधर देखिए, मुझे प्रूव क्या करना है कि xn कन्वर्स करती है x को। What is the distance between xn and x? Can I write this is less than equal to distance between x and xnm plus distance between x and m x? I can write this? अरे भाई कुछ नहीं कर रहा, x1 और x में मैंने एक xnm टर्म बीच में एडिशनल डाल दी है, दैट्स इट। ये क्यों डाली है, बिकॉज मेरे पास इंफॉर्मेशन किसकी टर्म्स में, इसकी टर्म्स में, एप्सिलॉन के साथ क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो मैं इस इंफॉर्मेशन, देखिए राइट हैंड साइड में मुझे क्या चाहिए, टू शो दैट दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट टू x2। इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन x एंड x शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। मुझे ये प्रूव करना है, यही प्रूव करना है। अगर लेस देन एप्सिलॉन लाना है तो जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो किसकी टर्म्स में है, इनकी टर्म्स में, एप्सिलॉन के साथ। तो ऑब्वियसली मुझे ये रिलेशन जो है वो किस टर्म्स में लाना पड़ेगा, इस टर्म्स में लाना पड़ेगा, सो दैट आई कैन गेट एप्सिलॉन। ठीक, चलिए तो dxn xm। अच्छा एक बात मुझे बताइए, हमने अभी बोला है कि xn के किसको कन्वर्स करती है, x को। तो एक चीज तो पक्की बात है ना, अगर ये सीक्वेंस कन्वर्स करती है तो dxn के x कहां कन्वर्स करेगा, 0 को। जो डिस्टेंस है लिमिट में और टर्म्स में वो कहां जाएगा, 0 को जाएगा ना भाई। ये xn के x को जा रही है, तो डिस्टेंस बिटवीन xn के x कहां जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। सो इट मींस दिस डिस्टेंस टेंड्स टू dxn x, ठीक है, dxn xm, ये तो यही रहेगा, हाँ, दिस टेंड्स टू dxn m, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो प्लस ठीक है। नाउ dxn xm इज प्लस दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज, क्योंकि ये 0 की तरफ जा रहा है, दिस इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि 0 की तरफ जा रहा है, 0 का मतलब यही होता है लेस देन एप्सिलॉन। अच्छा
अब हमें ये शो करना है, हाउ कैन वी प्रूव दैट dx and x, दिस इज टू शो, ये टू शो करना है, क्योंकि हमें कन्वर्जेंस दिखाना है, तो इसका मतलब ये इनइक्वालिटी प्रूव करनी है। अब हमारे पास है क्या, xn xnm xnm x। अच्छा, अब इसको कैसे प्रूव करिएगा, थोड़ा सा सोचिए 1 मिनट के लिए। अब ये कहां है, ये लेस देन एप्सिलॉन है। अब एक चीज फिर आ गई, राइट हैंड साइड में तो हमें एप्सिलॉन चाहिए, बट यहां पर हमारे पास आ रहा है एप्सिलॉन। For each epsilon by 2 greater than 0, there exists n not belonging to n. This is the derivation, gentlemen. Any problem? चलिए एक बार दोबारा से समझ लीजिए इसको कैसे हो रहा है। मान लीजिए कोई भी एक्शन अगर एक कॉची सीक्वेंस है, प्लीज लुक एट द बोर्ड। कॉची सीक्वेंस हमें दे रखी है और हमें ये भी दे रखा है कि ये सबसीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है। हमें ये शो करना है कि जो ये सीक्वेंस है ना, जो कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस की जो लिमिट है, ये उस लिमिट पे कन्वर्स करेगी, ठीक है। और एक्शन इज कन्वर्जेंट। हमने कैसे शुरू करा, पहले हमने जो दे रखा है हमने एज इट इज उसको कॉपी कर लिया। दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन, दीज टू थिंग्स आर गिवन, ऑलवेज रिमेंबर। एंड देन के बाद जो लिखा होता है दैट इज टू शो ऑलवेज, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक। अच्छा, गिवन इंफॉर्मेशन सबसे पहले हमने लिख ली, ठीक। इसके बाद टू शो, जो हमें सिद्ध करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया हमें ये कन्वर्जेंट दिखानी है। अच्छा, अब मान लो क्योंकि सीक्वेंस एक्शन के क्या है, कन्वर्जेंट है, तो सीक्वेंस क्या कर गई, एक्स को कन्वर्स कर गई। कन्वर्जेंट दे रखी है तो नेचुरली कहीं ना कहीं तो कन्वर्स करेगी से एक्स, ठीक है, एक्स को कन्वर्स कर गई। नाउ वी क्लेम दैट कि जो ये सीक्वेंस हमें शो करनी है ना कि ये कन्वर्जेंट है, ये जो हमें शो करना है ना टू शो कि ये कन्वर्जेंट है, तो हम ये शो करेंगे कि ये सीक्वेंस सेम लिमिट एक्स को कन्वर्स करती है। वी विल प्रूव दिस। अच्छा, अब देखिएगा, अब क्योंकि सीक्वेंस एक्शन इज कॉची है, सो देयरफॉर फॉर ईच एप्सिलॉन बाय 2 देयर एग्जिस्ट एन नॉट सच दैट dx and xm इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर दिस इज नथिंग बट डेफिनेशन ऑफ सिंपल कॉची। मैंने कुछ नया नहीं किया इसमें, सिंपल मैंने डेफिनेशन इसमें लिखी, जस्ट इट। अच्छा, फिर उसके बाद हमने एक ट्रिक लगाई यहाँ पे, जो क्रैमिंग स्टेप है। अब हमने सब सीक्वेंस का यूज किया, जो ये है एक्शन के सब सीक्वेंस। हमने क्या सब सीक्वेंस का यूज किया कि अगर एक्शन एक्सएम लेस देन एप्सिलॉन एक्स, ये सभी टर्म्स जो एन नॉट के बाद है उसका डिस्टेंस है, तो अगर एक्शन एम में कोई भी टर्म ले लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है एन एम क्या आएगा, आफ्टर एम आएगा। मैंने अभी आपको बताया भाई N1 क्या है, 1 के बाद आ रहा है, N2 क्या है, 2 के बाद आ रहा है, N3 क्या है, सब सीक्वेंस का भी मैंने एग्जांपल दिया था। तो सिमिलरली NM क्या आएगा, M टर्म के बाद आएगा। और ये इनइक्वालिटी क्या कहती है, हर टर्म आफ्टर N नॉट क्या है, लेस देन M। सो इन पर्टिकुलर इसके लिए भी होल्ड करेगा, ठीक है। यहां तक हमने कर लिया। अच्छा, अब हम आते हैं टू शो पार्ट पे। टू शो में हमें क्या दिखाना है कि dx and x इज लेस देन एप्सिलॉन है, क्योंकि अगर कन्वर्जेंट दिखाना है तो ये दिखाना है। अच्छा, अब dxn के x किसको जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, ये भी हमें पता है क्योंकि कन्वर्जेंट है। और इन शॉर्ट अगर ये जीरो की तरफ जा रहा है तो इट मींस ये लेस देन एप्सिलॉन है। अब इधर देखिए इनइक्वालिटी लिखिए, अब मेरे पास लेस देन एप्सिलॉन आना है। एप्सिलॉन मुझे कहां मिल रहा है, एप्सिलॉन मुझे यहां मिल रहा है, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम आ रही है, एक्सएनएम टर्म आ रही है, और वो एक्सएनएम हम यहाँ पे है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको इन दोनों में डालें, ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे हम रियल में क्या करते थे, प्लस माइनस, अब प्लस माइनस वाली चीज नहीं है, अब जो है हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाते हैं। दिस इज द ओनली डिफरेंस। तो जैसे हम वहां पे रियल एनालिसिस में करते थे ना कि जैसे कोई भी ऊपर वाली टर्म्स में एप्सिलॉन आ रहा है, मिसिंग टर्म्स है, तो हम ऐड प्लस माइनस करते थे, वो इक्वल आता था। अब हम यहाँ पे प्लस माइनस की बजाय डी की टर्म्स में लिखते हैं। आइडिया वहीं से है, सब कुछ बस वे ऑफ राइटिंग चेंज हो रहा है, दैट्स इट, नथिंग इज ग्रेट। ओके ना, dx and xm। अच्छा, ये चीज जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है, ये देखो यहां से आई ना, ये लेस देन एप्सिलॉन, ये मैंने लेस देन एप्सिलॉन कर दिया, ठीक। अच्छा, अब बच गई ये, इसका इंफॉर्मेशन हमारे पास यहां से है, इसको दे दो नंबर 1, दिस इज बाय 1। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास हमने देखा एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन आना था, बट लेकिन हमें तो राइट हैंड साइड में एप्सिलॉन चाहिए। सो व्हाट शुड वी डू, जस्ट डिवाइड बाय 2, दैट्स इट, सो दैट यू कैन हैव ऑन राइट हैंड साइड व्हाट, एप्सिलॉन ओनली। दिस इज द ओनली थिंग। So just go back and write epsilon by 2. So no need to cram anything. आपको कोई भी epsilon by चाहिए, मूव करते रहिए,
लास्ट में जाइए, आपको पता लग जाएगा क्या होना चाहिए, देन गो बैक अगेन और वहां पे आप इसको फिल कर दीजिए जो आप बाय करके छोड़ के आए। ठीक है, सो अब जब भी आप लर्न करिए, मतलब कोई भी प्रूफ करिएगा तो आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा एप्सिलॉन बाय 3 आएगा, एप्सिलॉन बाय 1 प्लस डेल आएगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, हियर इज, समझ में आ गया? गुड, नेक्स्ट करते हैं, एक छोटा सा प्रूफ करा के खत्म। समय क्या हुआ है? अभी आधा घंटा हो रहा है यार, एक प्रूफ हो जाएगा। 1:30 से 2:30 है, वो 1:30 से 2:30, 2:30 से 3:30। एक प्रूफ कराऊंगा बस, ठीक है? इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूफ है जो मैंने बोला था, कौन सा? कि स्पेस C01 में अंडर सुप्रीमम नॉर्म स्पेस क्या होता है? हमेशा कंप्लीट होता है। बस एक ये प्रूफ कराऊंगा, ज्यादा लंबा है नहीं,